हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल in a region where both electric field and magnetic field exist. Let force due to electric field is equal to charge Q multiplied by electric field E. This is the force due to electric field. Electric field always accelerate the charge particle, always change the speed of the charge particle. And force due to magnetic field is equal to Q into V cross B. Q into V cross B. Now, what is the total force acting on the charge particle? F is equal to QE plus Q into V cross B. This equation is said to be Lorentz force equation. If F is equal to 0, QE plus Q into V cross B, that is equal to 0. It may be said that E is equal to minus of V cross B. In magnitude, by selecting the directions, in magnitude, E is equal to VB sin theta. If we want B to be minimum, sin theta is equal to 1, yani theta is equal to 90 degree. Therefore, V is equal to E by B. If a charged particle is moving with this velocity, yani given by E by B, then the total force on the charged particle may be 0. यहाँ पर ये भी कहता है हमारा E is perpendicular to both V, also perpendicular to B. So this is said to be, what is this? Velocity selector. This is said to be velocity selector. Now, we will discuss the different cases. ये velocity selector हमारा यूज होता है J.J. Thomson method to determine the specific charge. Let we suppose a simple case. Let this is the direction of electric field.
the electric field is E, I am supposing that E naught J. A charged particle enters with velocity V naught I. A charged particle enters with speed V naught I. Now, what will happen? We want that this charged particle remains undeflected. This charged particle remains undeflected. Therefore, force due to magnetic field. This is the direction of Fe. क्योंकि Fe किसके बराबर होता है? Fe that is equal to Q E naught J. Now, FB. What should be FB? FB Q E naught J के बराबर होना चाहिए माइनस साइन में. तो FB किस तरह से क्रिएट किया जाए कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स इन माइनस J एक्सिस. तो व्हाट इज दिस? हमारे पास क्या चाहिए? वी वांट दैट रिजल्ट इज इक्वल टू, वी वांट FB is equal to minus Fe, so that FB plus Fe is equal to 0. तो यहां पर मैं क्या करके चलूं कि भाई हमारे पास FB किसके बराबर? FB है हमारे पास Q इंटू V नॉट I क्रॉस B वेक्टर. B वेक्टर, तो B वेक्टर हमारे पास किस डायरेक्शन में आना चाहिए? B नॉट किसके आना चाहिए? सो दैट इट गिव्स माइनस ऑफ Fe Q E नॉट J. तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस J. माइनस J आएगा हमारे पास I क्रॉस K. I क्रॉस K किसके बराबर आ जाएगा आपका? माइनस J के बराबर. तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बिकम इक्वल टू 0. तो देयरफॉर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? किस डायरेक्शन में आना चाहिए आपका? क्या आना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए. तो फिर मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू इन विच डायरेक्शन? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ये दिस मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे लगेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. देन दिस फोर्स विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस J. तो हमारे पास फील्ड किस तरफ होना चाहिए आपका? फील्ड होना चाहिए आपका ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा Fe, तो फील्ड होना चाहिए आपका आउटवर्ड. इस केस में आपके पास V नॉट जो सोल्व होकर के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका E नॉट बाई B नॉट. ये हमारा क्या बना? वेलोसिटी सेलेक्टर. इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर वी कैन हैव दैट द चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड. चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? द चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड. नाउ अंडर व्हाट कंडीशन द charge particle will move undeflected? A charged particle move undeflected in a region what are the possible conditions? Number 1, E is equal to 0.
और B इज इक्वल टू 0, ना तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लग रहा है, ना आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, तो आपके पास चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में से अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, दैट विल कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. सेकंड केस, in a region electric field exists, in a region electric field exists along the direction of motion of charged particle. Direction of motion of charged particle and B is equal to 0, means we are assuming that E is not equal to 0 but B is equal to 0. इस केस में भी आपका अनडिफ्लेक्टेड रहता है, बट कंडीशन ये होना चाहिए आपका E जो है आपके पास, E जो है हमारे पास पैरेलल होना चाहिए किसके, वेलोसिटी के. E जो है वो आपके पास पैरेलल होना चाहिए, किसके पैरेलल होना चाहिए, वेलोसिटी के. और B इज इक्वल टू 0 हो गया. नेक्स्ट केस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. तीसरा केस हम लेते हैं, व्हेन E is equal to 0 और B is not equal to 0. क्या इस केस में अनडिफ्लेक्टेड रह सकता है? Yes, it can. Will remain undeflected if motion of charged particle is parallel to magnetic field. Motion of charged particle is parallel to magnetic field. इस केस में भी आपका क्या रह सकता है, आपका अनडिफ्लेक्टेड, यानी दोनों जीरो हो तो भी अनडिफ्लेक्टेड रह सकता है, वो तो रहेगा ही रहेगा. When E is not equal to 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो भी जीरो हो सकता है, पर कंडीशनल है, पैरेलल होनी चाहिए वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है तो हमारे पास पाथ बनेगा पैराबोला. कब बनेगा पैराबोला? इफ द वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पाथ विल बी पैराबोला. और if E is equal to 0, B is not equal to 0, the remain undeflected if motion of charged particle is parallel to magnetic field. वही केस है, अगर पैरेलल नहीं होगा तो आइदर ए सर्कल और ए हेलिकल पाथ. फोर्थ केस, व्हेन ना तो E 0 है और ना B 0 है. क्या इस केस में आपका चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रह सकता है? यस, अगर हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो Fe प्लस Fb इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो आपका चार्ज पार्टिकल स्टिल अनरिफ्लेक्टेड रहेगा. यहां पर आपके पास E परपेंडिकुलर टू V है और E आल्सो परपेंडिकुलर टू B होना चाहिए. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम लगाना चाहते हैं देन व्हाट शुड बी, क्या कहते हैं, एंगल, तो थीटा आपका 90 होना चाहिए. वो आपका वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम आप बात करके चलें कि अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल का
अगर हमारे पास चार्ज्ड जो पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट विल डिस्क्राइब, किस तरह का पाथ डिस्क्राइब करेगा, वी विल डिस्कस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। मैं मान करके चल रहा हूं, व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट द चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, Q ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया गया है, और हमारे पास E जो है वो किसके बराबर है, E नॉट J के बराबर, E नॉट J के बराबर। तो इनिशियली द चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इसकी वेलोसिटी किधर बढ़ेगी, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेगी। अब वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेगी तो मोशन में आ गया, अब मोशन में आ गया तो हमारे पास क्या आया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम क्या लेते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेंगे देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन, वेलोसिटी तो जे के अक्रॉस हो गई, और आपके पास बी मैंने लिया, क्या लिया, बी नॉट के। तो इनिशियली वेलोसिटी किस एक्सिस के अलोंग है, जे एक्सिस के अलोंग है, तो जे क्रॉस के मींस आई। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा किस तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस। आई एम सपोजिंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। Now it will deflect like this. Now what is the direction of force here? अलग से ले लेता हूं, यहां पर चार्ज पार्टिकल पहुंच गया, ऐसे डायरेक्शन है उसके मोशन की, तो क्या करेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लगेगा इधर, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इधर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, कौन से दो कंपोनेंट हो गए, एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये लग गया अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ये इसकी स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी ऊपर जो जा रही है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास और आएगा, यहां पर फिर और आगे जाएगा, तो पाथ ऐसे हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग गया, ये आपके पास भी है, और डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बन गया इधर, दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास। ये वाला कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा, यही कंपोनेंट करने की कोशिश करेगा, और इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला उसकी स्पीड को करने की कोशिश करेगा। तो ये आ गया, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 हो जाएगा, और फिर आपका इस तरह से आने लग जाएगा, वो इस तरह से इस डायरेक्शन में ये पाथ फॉलो करेगा, यहां पर आप आकर के आपके पास दोनों फोर्सेस दोबारा से बराबर हो जाएंगे, राइट। क्यों बराबर नहीं होंगे, यहां पर आपके पास वापस घट करके वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, उतनी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव दिस टाइप ऑफ मोशन। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोबारा बढ़ने लग जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा, स्पीड घटा देगा, फिर दूसरी साइड में स्पीड लेकर के आएगा। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस तरह का मोशन आएगा, और ये जो शेप आती है इसको क्या बोलते हैं, साइक्लॉयड।
इसको क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड बोलते हैं। थैंक यू।